Good morning, students. Today we will discuss the last most important topic of electrostatic, that is capacitance. In this chapter we will study the following topics like behavior of conductor in electric field, electrical capacitance, principle of capacitance, capacitance of parallel plate capacitor, series and parallel combination of capacitors, energy stored in a capacitor, and energy density. That is one of the most important topic. Energy stored in series and parallel combination of capacitors, loss of energy on sharing charges between the two capacitors, polar and non-polar molecules, polarization of dielectric, polarization vector and dielectric strength, and last topic is parallel plate capacitor with dielectric slab. That is also one of the most important topic in this chapter. Now we will start with the first topic, that is behavior of conductor in electric field. That is, in this topic we will study how the conductor behave when electric field is applied to the conductor. First important point is behavior of conductor in electric field. First point is net electric field inside the conductor is zero, or net electric field in the interior of a conductor is zero. How we can prove it? Consider a conductor of any shape. Conductor means it has free electrons, that is it has free electron, that is it conduct electricity. But in this case we are studying only charges at rest. So that is conductor is a material which have free electrons. So in this we have a conductor of any shape, and when we place this conductor in electric field is applied from positive to negative plate, and in the interior of the conductor electric field is zero. How we can prove it? When we place the conductor in electric field, then free electron inside the conductor will experience force because of electric field. Applied electric field is E naught. That is, by the definition of electric field, consider we have इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपके पास जो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, and this charge may be positive or negative. According to this formula, force will be equal to Q naught into E, एंड हेयर इज़ वेक्टर, हेयर इज़ वेक्टर, और यहाँ पे आपके पास प्लस साइन भी हो सकता है, माइनस साइन भी हो सकता है. अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला आपके पास क्या है कि जब हम फ्री कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, एंड दैट फोर्स विल बी इक्वल टू F इज इक्वल टू माइनस Q नॉट इंटू E. बिकॉज इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज नेगेटिव है तो आपके पास फोर्स कितना आएगा? F इज इक्वल टू माइनस Q नॉट इंटू E. And this indicates that minus sign indicates that force and electric field are opposite to each other. मीन्स कि हमारे पास जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन में अप्लाई किया है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके ऊपर फोर्स लगेगा, दैट फोर्स विल बी ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड. मीन्स वो सभी इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की प्लेट की साइड एक साथ आ जाएंगे और उसके ऑपोजिट में क्या अपीयर हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज. बिकॉज उसमें पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स कितना लगेगा? F इज इक्वल टू प्लस Q नॉट इंटू E. दैट इज़ उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स है दोनों की डायरेक्शन सेम होगी अगर चार्ज पॉजिटिव है. अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी. तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो सभी पॉजिटिव की प्लेट की तरफ आ जाएंगे और जो पॉजिटिव चार्ज दूसरी साइड बचेगा. तो दैट इज़ इनसाइड द कंडक्टर जो आपके पास है चार्ज डिवेलप हो जाएगा इस फोर्स की वजह से. तो ये जो फोर्स चार्ज डिवेलप हो गया इनसाइड द कंडक्टर, उसकी वजह से क्या होगा कि जो इनसाइड द कंडक्टर फ्री इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगा है उसकी वजह से इनसाइड द कंडक्टर आपके पास क्या प्रोड्यूस हुआ है? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड. इनसाइड द कंडक्टर क्या प्रोड्यूस हो गया है? इलेक्ट्रिक फील्ड. एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनसाइड द कंडक्टर उसको हमने डिनोट किया EP के साथ, बिकॉज पॉजिटिव
जो हमारे पास नेगेटिव प्लेट थी उधर पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो गया कंडक्टर के अंदर, जो पॉजिटिव प्लेट थी उधर आपके पास नेगेटिव चार्ज अपीयर हो गया इनसाइड द कंडक्टर। तो इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है ई पी दैट इज़ ऑपोजिट टू अप्लाइड फील्ड ई नॉट। अब ये जो फील्ड दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, ऑपोजिट होने की वजह से एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल, और नेट फील्ड कितना आ जाएगा आपके पास, ज़ीरो। देयरफॉर इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ज़ीरो। We can explain it as when a conductor is placed in an electrostatic field, the charge drifted toward the positive plate. Negative free electrons means free electron will be drifted toward the positive plate, having the positive core behind means कि positive charge दूसरी साइड शिफ्ट हो रह जाएगा, आपके पास बच जाएगा। At an equilibrium, the electric field due to the polarization becomes equal to the applied field means फील्ड जो इनसाइड द कंडक्टर प्रोड्यूस हुआ है उसको हम पोलराइजेशन फील्ड भी बोल सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे सेपरेशन ऑफ चार्जेस हुआ है, दैट इज़ पोलराइजेशन ऑफ चार्जेस, और जिसकी वजह से दोनों फील्ड एक दूसरे के ऑपोजिट होने की वजह से एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल, तो नेट फील्ड कितना आएगा, ज़ीरो। तो इसीलिए हम जब भी कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करते हैं तो इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड शो नहीं होती हैं। रीज़न, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज़ ज़ीरो एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर इज़ यूज्ड एज ए इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। मीन्स अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड से सेव करना है तो उसको अगर आप कंडक्टर के अंदर रखोगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड से सेव हो जाएगा, तो दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर इज़ परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। मीन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इनसाइड तो हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं बिकॉज वो ज़ीरो है, लेकिन यहाँ से वो अंदर एंटर हो रही हैं, जो यहाँ से वो बाहर निकल रही हैं, वो पॉइंट कंडक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी परपेंडिकुलर। तो उसको हम कैसे प्रूव करेंगे, कंसीडर ए कंडक्टर ऑफ एनी शेप अगेन, लेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कंडक्टर के साथ थीटा एंगल पे है, कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे। नाउ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ई कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट, कौन से दो कंपोनेंट प्रोड्यूस होंगे यहाँ पे, एन कैप की साइड आपके पास आ जाएगा ई साइन थीटा, और जिस साइड पे एंगल बन रहा है उस साइड पे क्या आ जाएगा, ई कॉस थीटा। तो वो जो ई कॉस थीटा कंपोनेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसकी वजह से वो जो कंपोनेंट है वो टेंजेंट पे लग रहा है कंडक्टर के, तो टेंजेंट पे लगने की वजह से जो फ्री चार्जेस होंगे जो कंडक्टर के सरफेस के ऊपर वो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, मतलब सरफेस चार्ज विल एक्सपीरियंस फोर्स बिकॉज ऑफ ई कॉस थीटा कंपोनेंट, मीन्स के इसकी वजह से सरफेस करंट होगा, बट कंडक्टर में सरफेस करंट की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि यहाँ पे सरफेस चार्ज की मोशन नहीं होनी चाहिए, तो दैट इज़ ई कॉस थीटा मस्ट बी ज़ीरो। ई कॉस थीटा अगर ज़ीरो होगा तो मीन्स आइदर ई ज़ीरो और कॉस थीटा ज़ीरो, बट ई ज़ीरो नहीं है बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब कॉस थीटा ज़ीरो होगा। कॉस थीटा ज़ीरो का मतलब थीटा कितना होगा, 90 डिग्री, तो दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर is always perpendicular. We can explain it as suppose the electric field is acting at an angle other than 90 degree, means at an angle theta हमने suppose किया, then there will be component E cos theta acting along the tangent at the point of the surface of the conductor, which will tend to accelerate the charge on the surface लीडिंग टू सरफेस करंट, बट सरफेस करंट जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है, ज़ीरो, बिकॉज चार्जेस एट रेस्ट के बारे में स्टडी हो रही है, तो दैट इज़ ई कॉस थीटा मस्ट बी ज़ीरो, तो आइदर ई ज़ीरो और कॉस थीटा ज़ीरो, तो ई ज़ीरो नहीं है तो कॉस थीटा ज़ीरो होगा, जिसकी वजह से थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 90 डिग्री। आई थिंक टू प्रॉपर्टीज़ आर क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ ऑफ ए कंडक्टर इज़ नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर इज़ ज़ीरो। ये कैसे प्रूव करेंगे, इसमें हम फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी है, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ज़ीरो, तो दैट इज़ कंडक्टर आपके पास एनी शेप, उसमें हमने अभी पढ़ा है कि अगर उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसमें चार्ज का सेपरेशन पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसे होगा, और इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हमने प्रूव किया, ज़ीरो। द चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी हुई है, गॉस थ्योरम, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स की डेफिनेशन क्या है, ई डॉट डी एस ओवर द क्लोज सरफेस इंटीग्रल।
अब अगर हम इसमें सेकंड वाली इक्वलिटी लेके चलें, दैट इज़ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो हमने ये प्रूव किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई ज़ीरो है। तो अगर ई ज़ीरो है तो चार्ज भी कितना होगा, ज़ीरो। तो इन द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर चार्ज इज़ ज़ीरो। लास्ट सेकंड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी क्लियर। देन फोर्थ प्रॉपर्टी, चार्ज ऑलवेज रिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, दैट इज़ इन ए कंडक्टर charge always reside on the surface of the conductor, not in the interior of the conductor. Next is, suppose a conductor is given some excess charge q, construct a Gaussian surface just inside the conductor, मीन्स कि ये जो डॉटेड लाइन इसके अंदर शो हो रही है कंडक्टर के अंदर, वो हमने गॉसियन सरफेस कंसीडर किया था और उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़ीरो है, तो चार्ज भी क्या है, ज़ीरो। तो जो सरफेस बाहर से हमने एक्सेसिव दिया था दैट विल रिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी इज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ कांस्टेंट फॉर द इंटायर कंडक्टर, दैट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट होगी फॉर द इंटायर कंडक्टर। उसको हम प्रूव कैसे करेंगे, लास्ट चैप्टर में हमने एक रिलेशन पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, दैट इज़ ई इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, डी वी अपॉन डी आर। तो यहाँ से डी वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ई इंटू डी आर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या है, ज़ीरो, तो दैट इज़ जो आपके पास डी वी है दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब किसी भी क्वांटिटी का डेरिवेटिव ज़ीरो कब होता है, जब वो क्वांटिटी क्या हो, कांस्टेंट। तो दैट इज़ डी वी इक्वल टू ज़ीरो, हमने यहाँ से देख लिया बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, तो वी इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो पोटेंशियल इज़ कांस्टेंट, दैट इज़ सिंस ई इज़ ज़ीरो इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर, सो डी वी ज़ीरो होगा, दैट इज़ वी इज़ कांस्टेंट बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ एनी क्वांटिटी इक्वल टू अगर ज़ीरो हो तो वो क्वांटिटी क्या होती है, कांस्टेंट। नेक्स्ट इज, surface charge distribution may be different at different point, means surface charge distribution means charge density, that is surface charge density होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो अगर एरिया ज़्यादा होगा तो डेंसिटी कम होगी, अगर एरिया कम होगा तो डेंसिटी ज़्यादा होगी। दैट इज़ आपके पास अगर एरिया कम है इस केस में, दैट इज़ सिग्मा प्लस मैक्सिमम लिखा हुआ है, सिग्मा मिनिमम लिखा हुआ है। सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, मतलब एरिया कम तो डेंसिटी ज़्यादा। तो इसके अकॉर्डिंग जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट होगी डिपेंडिंग अपॉन द एरिया ऑफ द कंडक्टर एट दैट पॉइंट। नेक्स्ट इज, एवरी कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम 3 dimension rather than just a equipotensial surface 2 dimension. Next is electrical capacitance, that is next most important topic in this chapter, electrical capacitance, or we can say it as, we can define it as the measure of the ability of a conductor to store charge is known as capacitance or कैपेसिटी, मतलब किसी कंडक्टर की अपने में कितने चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी है दैट इज़ नोन एज कैपेसिटेंस, और पहले हम इसको कैपेसिटी भी बोलते थे। इसका सिंबल होता है सी, सी से हम इसको डिनोट करते हैं। और इसके लिए फॉर्मूले ड्राइव करने का क्या मेथड है, हमारे पास हमने पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दैट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, दैट इज़ वी एंड क्यू आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो that is Q is directly proportional to V and Q is equal to CV, where C is constant of proportionality and which is known as capacitance, that is electrical capacitance. C is the symbol of electrical capacitance and it is the capacity or the ability of a conductor to store charge. It is also known as condenser. It is used in fan. आपने सभी ने देखा होगा फ़ैन में भी लगा होता है ये कंडेंसर, और बहुत सारे डिवाइस अप्लाइंसेस में यूज़ होता है। तो यहाँ से आपके पास सी की वैल्यू क्या आएगी, क्यू अपॉन बी, दैट इज़ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस इज़ द रेशियो ऑफ चार्ज अपॉन वॉल्यूम, चार्ज एंड वॉल्यूम। और यूनिट इसके क्या होंगे, अगर हमारे पास चार्ज है, चार्ज के यूनिट होते हैं कूलम, और पोटेंशियल के यूनिट क्या होते हैं, वोल्ट। तो देन आपके पास C इज़ इक्वल टू क्यू आएगा अगर पोटेंशियल 1 वोल्ट है। तो कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज़ डिफाइंड एज द चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज इट्स पोटेंशियल थ्रू 1 यूनिट, मतलब किसी कंडक्टर का पोटेंशियल अगर 1 यूनिट आपने रेज करना है, इंक्रीज़ करना है, देन जो चार्ज स्टोर होगा, जितना चार्ज उस पोटेंशियल के लिए चाहिए, दैट चार्ज इज़ नोन एज कैपेसिटेंस।
Capacitance of a conductor is defined as the charge required to raise its potential through 1 unit and its unit is farad. SI unit of capacitance is farad, symbol is F and symbol of capacitor is, capacitance is दो पैरेलल लाइंस हैं और साथ में सर्किट में हम इसको ऐसे यूज़ करते हैं, अगर एक लाइन लार्ज हो और एक स्मॉल हो तो वो सेल होता है, लेकिन यहाँ पे दोनों लाइंस की जो लेंथ है वो एक जैसी है, पैरेलल लाइंस है. दिस इज़ अ सिंबल ऑफ ए कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल सर्किट. देन यूनिट को कैसे डिफाइन करेंगे? कैपेसिटेंस इज सेड टू बी 1 फैरेड व्हेन 1 कूलम चार्ज रेजेस द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर बाय 1 वोल्ट. मतलब चार्ज आपके पास 1 कूलम, पोटेंशियल 1 वोल्ट, मीन्स कैपेसिटेंस जो है वो 1 फैरेड होएगी अगर 1 कूलम चार्ज से हमें रेज करने के लिए चाहिए पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट. नेक्स्ट इज अदर यूनिट इसके हो सकते हैं पिको फैरेड, माइक्रो फैरेड. प्रैक्टिकली जितने भी कैपेसिटर हमारे पास यूज़ होते हैं उनमें से किसी की भी कैपेसिटेंस जो है वो फैरेड में नहीं होती, बिकॉज 1 फैरेड इज़ वेरी लार्ज कैपेसिटी. सो दो अब जितने भी प्रैक्टिकली कैपेसिटर होंगे उनके ऊपर जो कैपेसिटेंस की वैल्यू लिखी होगी या तो वो माइक्रो फैरेड में होगी, मीन्स 10⁻⁻6 फैरेड के इक्वल होगी, और या फिर पिको फैरेड में होगी. फैरेड में नहीं मिलेगी बिकॉज इट इज़ very large value of capacitance. Then since 1 coulomb is a big amount of charge, the capacitance will be usually in the range of millifarad, microfarad, nanofarad or picofarad, not in terms of farad. These are the एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर. आपने देखा होगा इस टाइप के अप्लाइंसेस में कोई सर्किट में लगा हुआ जो भी कैपेसिटर है इसको हम कैपेसिटर बोलते हैं. जैसे आपके पास डिफरेंट एग्जांपल है तो आप इसको देख सकते हो, डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेसिटर्स. देन कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर. मतलब आपके पास स्फेरिकल कंडक्टर है, उसका रेडियस r है और हम इसमें उसकी कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे. तो कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है C इज़ इक्वल टू Q/V. उसके लिए कंसीडर स्फेरिकल कंडक्टर having center O, radius R, charge at the center is plus Q और हमने इसकी कैपेसिटेंस फाइंड करनी है. और अब ये कैपेसिटेंस फाइंड करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक पॉइंट बताऊँगी कि कैपेसिटेंस फाइंड करने का मेथड क्या है. वो फाइंड करने के लिए आप 2 मेथड यूज़ कर सकते हो. वो मेथड क्या है? जैसे C इज़ इक्वल टू होता है आपके पास Q/V. दिस इज़ ए फार्मूला फॉर कैपेसिटेंस. तो मीन्स कि अगर हमें C फाइंड करना है तो हमें V चाहिए, बिकॉज चार्ज ऑलरेडी हमें कंडक्टर के ऊपर गिवन है. तो V कैलकुलेट करने के हमारे पास 2 मेथड हैं. फर्स्ट V इज़ इक्वल टू 1/4πε0 Q/R. ये फार्मूला हमने कूलम्स लॉ के फार्मूले के अकॉर्डिंग पढ़ा हुआ है. सेकेंड फार्मूला हम फाइंड करेंगे E इज़ इक्वल टू dV/dr, दैट इज़ पोटेंशियल ग्रेडियंट. तो यहाँ से भी हम V फाइंड कर सकते हैं, इस फार्मूले से भी, और इस फार्मूले से भी V फाइंड कर सकते हैं. डिपेंड करता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें कौन सा फार्मूला लगाना है. अब इस सिचुएशन में जब हमारे पास कंडक्टर है तो उस केस में हम फार्मूला यूज़ करेंगे V इज़ इक्वल टू 1/4πε0, दैट इज़ कूलम लॉ के फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको यूज़ करेंगे. तो दैट इज़ हमारे पास आ जाएगा ये. यहाँ से हम पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करके कैपेसिटेंस में पुट कर देंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा सॉल्व होके. तो ये आंसर कैसे फाइंड करना है अब आपने. नेक्स्ट इज potential at any point on the surface is given as V is equal to 1/4πε0 डिवाइडेड बाय R लेकर हम इसको सॉल्व करेंगे. और उसको सॉल्व करने के लिए
चार्ज क्यू हमने सपोज किया सेंटर पे, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस इज गिवन एज v इज इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाई r। देन c का फॉर्मूला q बाई v और e v की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। v की वैल्यू पुट करने के बाद c इज इक्वल टू 4 पे एप्सिलॉन इंटू r। अब यहाँ से आपके पास क्या रिजल्ट प्रूव हो रहा है कि कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। जितना ज़्यादा रेडियस होगा उतनी ज़्यादा कैपेसिटेंस होगी। देन नेक्स्ट इज द अबव इक्वेशन इज़ ट्रू फॉर कंडक्टिंग स्फीयर, हॉलो और सॉलिड। दोनों के लिए ये ट्रू है, हॉलो के लिए भी और सॉलिड के लिए भी। इफ़ दिस स्फीयर इज़ इन ए मीडियम देन c इज़ इक्वल टू, अगर मतलब हमारे पास जो मीडियम जिसमें स्फीयर के अंदर हमने एयर लिया था उसमें अगर कोई मीडियम डाल दें तो आपके पास कैपेसिटेंस में एप्सिलॉन m आएगा और एप्सिलॉन m की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r आ जाएगी, तो उसमें वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी, कैपेसिटेंस विल इंक्रीज। कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ इज़ 711 माइक्रोफैरड। मीन्स अगर अर्थ की कैपेसिटेंस इतनी है तो मतलब 711 माइक्रोफैरड, तो हमारे पास जो माइक्रोफैरड में अगर कैपेसिटेंस आ रही है अर्थ की जिसका रेडियस कितना है 6400 किलोमीटर, इतनी बड़ी अर्थ का जो रेडियस है अगर हम उसको एज ए कंडक्टर सपोज करें तो उसकी कैपेसिटेंस आ रही है 711 माइक्रोफैरड। तो दैट इज़ 1 फैरड कैपेसिटेंस के लिए कितना रेडियस होगा आप इमेजिन कर सकते हो। तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली, दैट इज़ वाई कैपेसिटेंस ऑफ 1 फैरड इज़ नॉट पॉसिबल। Thank you. This is all about the today's lecture. In next lecture we will study principle of capacitor. Thank you.